Okay. So, in the last session, we were discussing about image optimization, right? And Yunus, you had some problem. आप यस URL के बारे में कुछ पूछ रहे थे, मुझे क्वेश्चन आपका तब समझा नहीं था. आप रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन? या मैम, मैं जो बोल रहा था, मैं एक पेज बनाया था ब्लॉगर के ऊपर, दूसरा पेज इसलिए नहीं बना रहा था, जो मतलब इंटरनल लिंकेज जो करना पड़ता है। और हम्म. पहला जो पेज है उसका जो यूआरएल बन रहा है 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ रहा है अपने आप जो बन हम्म. रहा है, उसको मुझे कस्टमाइज करना है। अच्छा, उसको आपको कस्टमाइज करना था. ओके, या ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. यूआरएल कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं. इसके अलावा कोई प्रॉब्लम था इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड? इमेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड में और भी तरीके से, मतलब इमेज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन जानना चाहता हूँ, मतलब जितना भी तरीका है। आपने एक ठीक है. तरीका बताया था और बोला था अगले सेशन में बताऊंगा। जी बिल्कुल. तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं लास्ट सेशन में हमने जो भी किया है. ओके. सो आई एम जस्ट शेयरिंग द पीपीटी वंस. इज माय स्क्रीन विजिबल? पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? पीपीटी दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पर? Yes, ma'am. या मैम, या Okay, okay, okay. So, in the last session, we have discussed about the image optimization, the visual contents of your page, right? So, in visual contents, we have infographics, we have images, we have videos, everything, right? So, how to optimize them? Okay, that we have discussed in the last session. So, first, let's discuss the image optimization. Okay, what is image optimization? Basically, it is optimizing web images. It is the no, process of delivering high quality images in the right format, dimension, size, and resolution. Okay, while keeping the smallest possible size. मतलब हमें क्या करना है image optimization में? हमें जो डायमेंशन है इमेजेस का, जो रेजोल्यूशन है, वो हाई क्वालिटी रखना है, फॉर्मेट भी उसको राइट रखना है. उसके साथ साथ जो फाइल का साइज है वो बहुत कम होना चाहिए, राइट? क्वालिटी हाई होनी चाहिए इमेजेस की. जब भी हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए या फाइल साइज रिड्यूस करने के लिए, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इमेज की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इसे कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन. बिकॉज यदि द इमेज साइज विल बी no too large, it will impact the loading speed of our website. And what is the ultimate goal of our optimization? We have to reduce the website loading speed. The website loading speed should be very fast. Okay, it should be very quick. So that is why it is very very important to optimize images and use the smallest possible size, okay, on our website, right? And image optimization, how to do that, what is the process involved in image optimization? First, whenever we are downloading the image in any of the device, we have to rename it with the name of keyword, whatever the keyword we are using for our page, right? मतलब हम अपने पेज के लिए जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसी कीवर्ड के नाम से हमें इमेज को रीनेम करना है जब भी हम अपने डिवाइस में डाउनलोड कर रहे हैं इमेज को. ठीक है. सेकेंड इज we have to update alternative text, title text and description while uploading the image on the website. ठीक है, वेबसाइट पर जब हम अपलोड कर रहे हैं इमेज को, हमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन, तीनों चीजें अपडेट करनी है, राइट? व्हाट इज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट? Alternative text basically in the no in the initial days it was for the visually impaired people, okay, who can't see the images on the screen. Okay, so they know what is the content of image by the text that you write in the alternative text, right?
So alternative text describes what is shown in the image. Okay, when you are optimizing your image, you have to update this alternative text. You can include the focus keyword in the alternative text, or you can include the heading in which you are inserting that image, because that will be relevant to the heading only, right? Or to the focus keyword only. Okay, so you can include that in the alternative text. In the title text, you have to include your focus keyword, and the description part, again you can use any relevant keyword to the focus keyword. Okay, this is how you can optimize your images. Okay, is it clear? मैम मैम So थोड़ा after डिस this, हाँ मैम मैं please. बोल रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन वाला इमेज का जो डिस्क्रिप्शन वाला जो सेशन है मतलब हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं आप? हाँ हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था, मैं फिर से एक बार नहीं दिखाती हूँ। एक डिस्क्रिप्शन का बोल डिस्क्रिप्शन भी बताती हूँ, वन सेकेंड। मैम एक बार आप मेरा साइट चेक करके बताओगे क्या मिस्टेक हुई है? मैम ब्लॉगिंग के लिए बनाई हुई है। ब्लॉगिंग के लिए बनाइए, आप मुझे अपना लिंक शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आई विल चेक दैट। ओके, ओके मैम, रैंक मैथ एसईओ किया था, उसमें 90 आ रहा है 100 में से, उसको स्क्रीन ऊपर विजिबल करने है के मेरा लिए। आप लोगों को? वेबसाइट विजिबल है? नो 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 मैम, वेबसाइट का डैशबोर्ड दिख रहा होगा? नहीं, नहीं अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है? ओके, सो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिख रहा है। ओके, सो फॉर इमेजेस विल गो टू द पोस्ट सेक्शन, टेक एनी पोस्ट। ओके, अभी इमेज का डिस्क्रिप्शन पार्ट हमें देखना है, राइट? So for this, let's upload a image, okay, in this post. So I'm selecting this add media option and selecting any of the image, okay, like this. Okay, so here what you have to do, here you have to update the alternative text. Okay, alternative text will be either it will be your focus keyword or any relevant closely related keyword. Okay, or keyword that describes your heading as well as the image. Okay, then title will be a focus keyword only. Caption you can choose accordingly, right? If you want to include the heading, you can include the heading, or if you want to include the focus keyword, that will be recommendable. Okay, मतलब आप हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, फोकस कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट यदि फोकस कीवर्ड यूज करते हैं तो वो रिकमेंडेबल है, बिकॉज आपको कीवर्ड डेंसिटी का भी ध्यान रखना होता है अपने कंटेंट में, राइट? अब आती है डिस्क्रिप्शन की पार्ट। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, आपको अपने फोकस कीवर्ड या फिर उसका कोई रिलेटेड कीवर्ड, आप उसको जो भी आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिलती है, ठीक है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो जो आप लिस्ट बनाते हो रिलेटेड कीवर्ड्स की, उनमें से कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या तो फोकस कीवर्ड यूज कर सकते हो, राइट? ठीक है, क्लियर हुआ डिस्क्रिप्शन में क्या यूज करना है और कहाँ पर आप अपडेट करते हो डिस्क्रिप्शन? या मैम फोकस कीवर्ड यूज करना है और रेलिवेंट कीवर्ड यूज करना है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है ना, वही ध्यान। नहीं, आपको ज्यादा ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड एक्चुअली खुद में ही बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, राइट? तो आप वो यूज कर सकते हैं, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है हमें, राइट? बट जो भी रिलेटेड कीवर्ड है वो हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? हमें पूरा इमेज को डिस्क्राइब नहीं करना है यहाँ पर इन टोटल, बट हमको कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी खुद में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, राइट? ठीक है, या और कुछ और कोई क्वेरी है इमेज से रिलेटेड? मैम मैम जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक कार है, तो उसका OLT टेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ, कार है वो रेड कलर का है, ऐसे लिख सकता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ज्यादा लिख सकता हूँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है यूनुस।
ओके मैम, मेरा थोड़ा इंटरनेट का हाँ इशू हो रहा है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाँ फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल मैं एक कार का इमेज दे रहा हूँ। हाँ तो हाँ। हाँ, तो ALT टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ, मेरा जो कीवर्ड है कार, सिर्फ कार। सिर्फ कार यदि आप ले रहे हो तो वो नहीं काम करेगा। आपको थोड़ा सा डिटेल, मैं बोल रही हूँ ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज करो वहां पर, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड अपने आप में बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि क्या डिमांड है यूजर की। राइट, समझ आ रहा है यूनिस? मैम आप कंटिन्यू कीजिए, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। So this was about the images. Now the next thing is, I'm just yes Rashmi. Is there any limitation of keywords कि इतना ही लिख सकते हैं? Okay, if anyone has any query please. No, there is no limitation of keyword, but keyword, if you will stuff the keywords in the alternative text or description part, it will be considered as black hat SEO. So don't do that. Just use one keyword. That is enough. You can use the long tail keyword if you want. Okay. Okay. Is it clear? Yeah. Okay. So let's move ahead. I'm sharing the PPT again. Now, after the images, we have the another element, important element of search engine optimization is structured markup. Okay. So what is structured markup? Structured markup is basically, it is also known as schema markup, right? It is the code you add to your web pages, okay, or your website to help search engines better understand your content, okay. Whatever you have uploaded on your website, whatever things you have included in your content, through this schema markup, you actually let search engine understand your website content in a better way, okay. For example, uh, again I'm sharing my screen. Uh, I'm searching for party cake recipe. Okay, is my screen visible? I have searched for party cake recipes here. या मैम Okay, विजिबल। okay. So structured markup basically क्या हुआ? Structured markup एक कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, जिसके थ्रू सर्च इंजन जो है वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट को बेटर वे में समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं? हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी केक रेसिपी सर्च किया है। ओके, दिस इज माय क्वेरी एंड इफ यू कैन सी दीज आर द रिजल्ट्स at the top, right? How they are different from normal results? They contain star ratings, reviews, preparation time, ingredients as well, right? So in this example, Google has included all the things in the search result itself, right? मतलब कि जो कोई भी विजिटर है उसे अभी जो ओवरव्यू मिल गया, राइट, सर्च रिजल्ट में ही अभी उनको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन टाइम बाहर ही पता चल रहा है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज पता चल रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उन्हें यूज करने हैं वो भी सर्च रिजल्ट में ही पता चल रहा है, राइट। सो जब नॉर्मल रिजल्ट में कुछ एडेड फीचर हमें बताने हैं विजिटर को, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं यूजर का अटेंशन या विजिटर का अटेंशन, ओके, इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड मार्कअप जो है वो यूज करते हैं अपने कंटेंट में, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंस है स्कीमा मार्कअप की? समझ में आया रिजल्ट कैसे होते हैं स्ट्रक्चर्ड मार्कअप के? व्हाट मैम इज मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि स्कीमा मार्कअप होता क्या। स्कीमा मार्कअप? एक कोड होता है, ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। बेसिकली हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हम जो भी लिख रहे हैं कंटेंट, हम जो लिख रहे हैं अपने वेबसाइट पर, वो मशीन को नहीं समझ आता, राइट। सर्च इंजन कौन है? एक मशीन है ना। या तो जो भी या हम लैंग्वेज वहां पर लिख रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में,
उसको वो नहीं समझ आती, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर समझ आता है। जो कोडिंग हम यूज करते हैं, HTML यूज कर रहे हैं, जावा, जो भी हम यूज कर रहे हैं कोडिंग, वो कोडिंग सर्च इंजन को समझ में आती है, ठीक है। तो वो कोडिंग जो होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि आपको पेजेस, जो भी वेबसाइट के एलिमेंट है या पेज का एलिमेंट है, उसको कैसे विजिबल होना चाहिए वेबसाइट पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले स्लाइडर आना चाहिए, ठीक है। यदि मैंने स्लाइडर लगाया अपनी वेबसाइट पर, सबसे पहले स्लाइडर आए, इधर एक लोगो आना चाहिए, सबसे पहले हेडिंग आना चाहिए, हेडिंग 1 का फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर कंटेंट आना चाहिए, फिर एक इमेज आना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब करी है अपने कंटेंट में, ये सर्च इंजन कैसे समझेगा? कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये कोडिंग जो है वो सर्च इंजन को बेहतर तरीके से समझ में आए, इसके लिए हम स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरे, ये इतना समझ में आया स्कीमा मार्कअप? या मैम, या क्लियर। ठीक है। अभी हम स्कीमा मार्कअप से और क्या फायदा है सर्च इंजन को समझ में आया, दैट्स गुड, राइट। What are the other benefit of schema markup? Other benefit is schema markup shows our result in a better way on the search engine result page, like this party cake recipes. Okay, if you can see, it includes image, it includes ingredients, preparation time, ratings and reviews, everything. Okay, so it is actually attracting the attention of user, right? मतलब कि यूजर का अटेंशन, ये नॉर्मल रिजल्ट से डिफरेंट है। नॉर्मल रिजल्ट में क्या होता है, मैं एक नॉर्मल रिजल्ट का एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि ये है, इसमें भी रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई इमेज नहीं है, कोई साइट लिंक्स नहीं है, रेटिंग्स नहीं है, रिव्यूज नहीं है, राइट। तो ये एक नॉर्मल रिजल्ट है। बट यदि इसके साथ मुझे ये वाला रिजल्ट मिले, या फिर सॉरी ये वाले रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से आई कैचिंग है, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव सी इमेज यहाँ पर इन्होंने ऐड की है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज ऐड किए हैं, तो ये यूजर का अटेंशन कैप्चर करती है, राइट। इसलिए हम स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं अपने वेबसाइट पर। ओके, इज इट क्लियर? नाउ there are different reasons why we are actually using schema markup for SEO. Why schema markup is important for SEO? Okay, so schema markup is important for SEO not because it directly impacts your rankings in search engine results, but it has some other benefits also. First of all, schema markup helps search engines understand the context and content of your page more effectively. ठीक है, मतलब कि स्कीमा मार्कअप क्या करता है, आपके पेज का या आपके वेबसाइट का जो भी कॉन्टेक्स्ट है, क्या आप डिलीवर करना चाहते हो, ठीक है, आपका कंटेंट क्या है, किस बारे में है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है सर्च इंजन को, ठीक है। इसलिए स्कीमा मार्कअप हम यूज करते हैं। एंड through this improved understanding, it can lead to your pages being shown on more relevant search queries. Okay, if someone is searching for any keyword related to your business, related to your product, Google will display your content or website in front of visitor in a better way. Okay, which translates more traffic to your website, right? Second importance is schema markup can enhance the appearance of your page in search results, right? This means people are more likely to notice. Okay, if some of the results are attracting attention of visitors, there are more chances to get clicks on that particular result, right? So it will improve the click through rate, right? मतलब कि यदि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट, सारे नॉर्मल रिजल्ट है और उसमें कोई एक ऐसा रिजल्ट है जो कि आई कैचिंग है, जो कि विजिटर्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि उस रिजल्ट पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आएंगे, राइट। सो या मैम, इम्प्रूव होगा क्लिक थ्रू रेट, राइट। तो इस या तरीके से क्या होगा कि स्कीमा मार्कअप जो है वो आपके वेबसाइट के रिजल्ट को एनहांस करता है, अपीयरेंस को एनहांस करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ओके, थर्ड इज schema markup can give you a competitive edge, right? Means there are still many websites who are not using schema markup on their website, right? So when you are doing this, you are getting ahead of the curve, right?
it's a competitive type, right? And by using this structured markup, you can actually stand out your website in the crowd, right? मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट अभी ऐसी अवेलेबल है सर्च इंजन पर जो कि स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर्ड डेटा अपने वेबसाइट पर यूज नहीं करते हैं. So please mute yourself, Rajiv. पता नहीं आगरा वाला चलाई कानपुर कानपुर ही पहुंच रहे हैं. मित्रा जो दिल्ली है उतार रोड कानपुर है. Okay. So this is okay. So this is how schema markup is important. Means बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी structured markup या schema markup अपने वेबसाइट पर यूज नहीं कर रहे हैं. बट यदि आप अपनी वेबसाइट पर इसे यूज कर रहे हैं तो आप उन लोगों से आगे हो. ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो एनहांस्ड वर्जन में अपीयर होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, और उसके थ्रू क्या होगा, ज्यादा चांसेस है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा. ओके, सो दीज आर द three most important reasons because of which we have to use schema markup on our website. Okay, is this clear? मैम इसको यूज कैसे करना है? यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. एक मिनट, मैं पहले एग्जांपल्स भी बताती हूँ आपको और इसको कैसे यूज करना है वो भी बताती हूँ. ओके ओके मैम, ओके. यूज करने के लिए is my screen visible, the website? Yeah, ma'am. Yeah, Dashboard? yeah. Is it Ma'am. available? Is it visible Visible, on ma'am. your screen? Visible. Okay. Okay. So for adding schema markup to my website, I am installing a plugin. This is the plugin section on the left hand side. From here, I can search for schema markup plugin. Okay, I have searched for schema markup plugin here. Sorry. I've already added it to my website, but for showing you, see, when I search for schema markup, these are the results I've found. So I have already installed this one, schema and structure data. Okay. For installing, you just have to click on install now, and then you have to activate this. Okay. After activating this, this is the option for structure data. You will see it on the left hand side. Okay, in the structure data, you can once again you can go into the settings. ठीक है, स्कीमा मार्कअप ऐड करने के लिए एक प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है. फ्री वर्जन अवेलेबल है इसका, वो हमने यूज किया है. फ्री वर्जन में देयर विल बी लिमिटेशंस. यू कैन यूज limited features of schema markup. Okay, limited schema types you can use in the free version, but if you upgrade for premium, there are lots of options available. I'm sharing both. Okay, so this is the setting of the plugin. Here what you can do, it will ask you which type of schema markup you want to use on your website. Okay, so for this, let us understand what are the different types of schema markup and how and where we can use this. Okay, different types of schema markup available हैं. कौन से फीचर के लिए, कौन से ऑप्शन के लिए, कौन से टाइप का स्कीमा मार्कअप हम यूज करते हैं, उसका एग्जांपल अब हम देखते हैं. ओके, so first is product markup. Okay, so what is product markup? Product markup we use for product markup gives Google more information about your products, so searchers can see more details directly on the results page. Okay, this includes products image, rating, price, shipping information, return information, and availability of that product.
ओके सो मैम एग्जाम्पल, आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? मैं स्क्रीन वापस से शेयर कर रही हूँ, आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ प्रोडक्ट मार्कअप का। ओके वन सेकेंड। मेंस शूज हम सर्च करते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरा? या मैम। ओके सो प्रोडक्ट मार्कअप का एग्जांपल वो होगा जिसमें प्रोडक्ट्स हमें दिखेंगे। ओके या फिर दिस इज एग्जांपल ऑफ स्कीमा मार्कअप। ओके ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स नहीं है, स्टिल यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट का इमेज दिख रहा है, डायरेक्टली प्राइसिंग अवेलेबल है, और यदि मैं इस पर क्लिक करती हूँ मैं डायरेक्टली उस ये देखिए राइट हैंड साइड में ये ओपन हो गया है और इसका सारा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। मैं डायरेक्टली यहाँ से प्राइस भी अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है या नहीं, डिलीवरी फ्री है, एवरीथिंग इज देयर। ओके कितने दिन का रिटर्न अवेलेबल, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख रही है। ओके सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मार्कअप। यदि मुझे परचेज करना है मैं डायरेक्टली यहाँ पर विजिट साइट कर सकती हूँ और परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मार्कअप। अब ये तो फ्री वर्जन में आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, ओके ये प्रीमियम वर्जन में होगा। तो जो हम फ्री वर्जन में इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ उस पर कर, ठीक है। सो प्रोडक्ट मार्कअप का एग्जांपल ये हो गया। इसके बाद आता है सेकेंड, रिव्यू मार्कअप। ओके सो इन द रिव्यू मार्कअप, the review markup will add a star rating to the bottom part of your results page entry. Okay so it shows searchers what other people think of your product or the service or business, right? This is helpful because customers use this information before making a purchase, right? Even we use this information when we are heading for any purchase, right? यदि हमें Amazon से, Myntra से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करनी है तो हम पहले रेटिंग्स एंड रिव्यूज चेक करते हैं, राइट? तो इसलिए रिव्यू मार्कअप जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि ये सर्च रिजल्ट पेज पर ही जो जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके नीचे ही रिव्यूज शो कर देता है। फॉर एग्जांपल if you can see this example here, ratings and reviews are available, how many reviews are available. so ये भी एक रिव्यू मार्कअप का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर रिव्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है जिससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या कितने लोगों ने रेटिंग्स दी है, कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिव्यू मार्कअप। रिव्यू मार्कअप का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, वन सेकेंड, नहीं, रिव्यू मार्कअप भी एक्चुअली प्रीमियम वर्जन है। मैं आपको सारे schema types दिखाती हूँ यहाँ पर। See, these are the premium features, but you can see how many types of schema markup you can actually use. Okay, can you see the screen? FAQ, Q&A schema, review schema, job posting schema, recipe, event, course schema, WooCommerce compatibility, real estate schema. Okay, so these are the ये different सब types पेड of, वर्जन है? हाँ जी ये सब पेड वर्जन है। if you are if you are upgrading this plugin, then you will use this premium features. Okay, so after this, next one is article markup. Okay, so what is article markup? Article markup provides Google with detailed information about the content of an article, okay, such as the title of that page, featured image, okay, author of that article and the date of publish, ठीक है। सो आर्टिकल मार्कअप यदि आप यूज करते हो तो आर्टिकल मार्कअप में जो ऑथर है, जो फीचर्ड इमेज है आपके कंटेंट का, थोड़ा सा कंटेंट का डिटेल पार्ट भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल यदि हम देखें तो वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने? वन सेकेंड, टॉप स्टोरीज वाला पार्ट देखा है किसी ने
सी दिस इज एग्जांपल ऑफ आर्टिकल मार्कअप। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इमेज शो हो रही है, लिंक है, और कितने कब ये पब्लिश हुआ है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा एग्जाम्पल मैं इलेक्शंस इन इंडिया सर्च करते हैं। ओके, okay, so see this is the description of Wikipedia, and these are the images and links available। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स हैं, जहां पर एक फीचर्ड इमेज आ रहा है पेज का, ठीक है, लिंक अवेलेबल है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वहां पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, so these are the examples of this is also an example of this article markup। okay, after this, next type of schema markup is course markup। okay, so what is course markup? Course markup gives Google detailed information about educational courses offered by an institution or an online platform। okay, so the details include the course title, a brief description, the name of instructor or institution, and other relevant information, right? So Google can display this information directly in the search results, offering potential learners a snapshot of what the course entails, right? For example, if I search for let's say online cooking courses, sorry, okay, so see, this is the ratings and reviews part। इसमें अवेलेबल नहीं है। IIT courses, let's search for this। कोर्सेस मार्कअप का एग्जाम्पल वो रहेगा जिसमें आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस रश्मि, दिस इज फॉर वर्डप्रेस। ओके, सो for example this, okay, so this is actually the sponsored ad। ओके, सो अभी आप इसी ये एग्जाम्पल ले सकते हैं एक। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट पेजेस अवेलेबल है, बस इसकी जगह पर क्या क्या कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉलेजेस जो हैं वो क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये यदि आप एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पर MBA प्रोग्राम है, SBM रियल एस्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। ये एग्जाम्पल होगा कोर्सेस मार्कअप का। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वो सर्च रिजल्ट में ही अवेलेबल होगा, ताकि जो भी स्टूडेंट है, जो भी विजिटर है, उसे सर्च रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट क्या क्या courses provide कर रहे हैं। okay, so this will be the courses markup। after this, next will be organization markup। okay, so organization markup gives Google comprehensive information about an organization, right? This includes details such as organization's name, logo, contact information, location of that organization, their social media profiles, and other relevant information, right? So Google can use all this information to create knowledge panels। okay, knowledge panels क्या होते हैं? ये knowledge panels भी आप फ्री में कर सकते हो अपने वेबसाइट पर इंक्लूड।
this will be, I think, yes, this knowledge graph. ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए। यदि कोई पर्सन है तो आप पर्सन वाला डेटा टाइप यूज करोगे, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन यूज करोगे। ओके, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, नेम, लीगल नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पर फीड करनी है। और ये रिजल्ट पेज पर कैसे शो होगा वो मैं आपको शो करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्च फॉर TCS। okay, so see, this is the example of knowledge graph, right? knowledge graph में क्या क्या included होगा, जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स होंगे, फाउंडर के, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कौन है, CEO, हेडक्वार्टर्स, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। उसके सोशल प्रोफाइल लिंक्स भी अवेलेबल है, राइट? So these are the details available for TCS। and again यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉलेज ग्राफ एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकल बिजनेस मार्कअप। ओके, so local business markup provides Google with detailed information about a local business. Okay, this includes the business name, the address, the phone number, and hours of operation. Okay, means Google can use this information to create local knowledge panel, right, which appears when someone searches for your business name. For example, local business का example जैसे hotels near me। ठीक है, आपने ये सर्च किया तो ये जो अवेलेबल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकल बिजनेस। ओके, लोकल बिजनेस टाइप या लोकल स्कीमा मार्कअप। ओके, तो जब आप लोकल स्कीमा मार्कअप अपने वेबसाइट पर यूज करते हो तो आपका जो बिजनेस का रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, और उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है साथ में। ठीक है, ये हुआ लोकल मार्कअप का एग्जांपल। आफ्टर दिस लोकल बिजनेस टाइप, लोकल मार्कअप इज क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप इज क्लियर, कोर्स मार्कअप इज क्लियर। ओके, सो इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप? किसी भी स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू? नो आप मैम। कैसे प्लगइन ऐड कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, ये भी क्लियर हो गया? मैम ये थियोरी तो क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हुआ। प्रैक्टिकल मैं एक और बार आपको शेयर कर देती हूँ। प्लगइन कैसे ऐड करना है वो समझ में आ गया। अभी प्लगइन ऐड करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये नॉलेज ग्राफ ही है जो हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप जब हम यूज करेंगे, जैसे अभी हमने TCS का एग्जांपल देखा था, राइट? सो यदि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें यहाँ पर डेटा टाइप ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है, और ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर TCS सर्च किया था, सो ये जो TCS का सारा डेटा आ रहा था ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर ये डिटेल्स फीड करनी है, और इसी डिटेल के बेसिस पर गूगल जो है ये डिटेल्स फेच करेगा यहाँ से और हमारी वेबसाइट से, और इस तरीके का जो रिजल्ट है वो दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बट यूजिंग स्कीमा मार्कअप इज नॉट द गारंटी दैट गूगल विल डिस्प्ले योर result on the search and the result page like this only। okay, ये गूगल के ऊपर ही डिपेंड करता है टोटली, और भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स वो कंसीडर कर सकता है। ठीक है, आप अपने साइट से स्कीमा मार्कअप अपने वेबसाइट पर लगा सकते हो, बट गूगल उसको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा, इट इज अप टू गूगल ओनली। ठीक है,
ये समझ आया नॉलेज ग्राफ कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? यूनिस प्रैक्टिकल समझ आया इसका? या मैम। ठीक है, ब्लॉक के लिए कौन सा स्कीमा मार्कअप इस्तेमाल करें? आर्टिकल मार्कअप यूज कर सकते हो आप, ओके। मैम है क्या ना? वही यदि वो एक ही फ्री वर्जन है? सॉरी, फ्री नहीं नहीं, वर्जन? और भी अवेलेबल है, नहीं नहीं नहीं, और भी अवेलेबल है, आप और भी सर्च कर सकते हो। मैंने बताया ना, यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो। मैंने जो यूज किया था उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप और भी जैसे आपको कोई पर्टिकुलर स्कीमा मार्कअप चाहिए, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्कीमा मार्कअप फ्री में कौन सा प्लगइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके इसके ओके। अलावा यदि आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप की जगह पर किसी पर्सन के बारे में, जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं इन पर्सन का, लाइक हम सर्च करते हैं नरेंद्र मोदी, ओके। सो ये जो है, ये किसका हो जाएगा? ये आर्टिकल मार्कअप का एग्जांपल हो जाएगा, राइट। और ये जो है, ये पूरा हो गया अगेन नॉलेज ग्राफ का एग्जांपल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमने पर्सन सर्च किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फेच हो जाएंगी, ठीक है। सोशल प्रोफाइल्स भी आ गए, क्लियर। ये भी कैसे आ सकता है? सेम विद दिस डेटा टाइप में हम पर्सन यूज करेंगे और सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। क्लियर हुआ ये? यस कोई मैम यस। कंफ्यूजन इससे रिलेटेड? ओके। तो ठीक है, हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई क्वेरी है जो भी मैम हमने वो हाँ, यूआरएल यूआरएल आपका, कस्टमाइजेशन। हाँ हाँ, 1 सेकेंड, मैं यूआरएल कस्टमाइजेशन वाला भी आपको बता देती हूँ। यूआरएल हम बाद में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है बनारस का प्रसिद्ध भोजन, ठीक है। तो ये जो परमा लिंक आपको दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से आप कस्टम परमा लिंक यूज कर सकते हो, ठीक है। यूनिस क्लियर हो रहा है? मैम बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है? या मैम। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ऑटोमेटिक परमालिंक है, एक कस्टम परमालिंक है। तो आप कस्टम परमालिंक पे जब क्लिक करोगे, आप यहाँ से अपना जो लिंक है वो चेंज कर सकते हो, राइट। 1 2 ओके 3 या ऐसा कुछ भी आ रहा है तो आप वहां से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके लेकिन मैम। ये यहाँ पर कस्टम परमा लिंक पे मतलब टिक परमालिंक, ये लगा के मैं अपना जैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। आपका वॉइस, 1 2 3 4 हाँ 5 नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड फीचर्स हैं क्योंकि ये फ्री वर्जन है। जब हमारे पास पेड वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पेड वर्जन में भी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द पोस्ट, और ये है पोस्ट। तो यहाँ पर यदि हमको अपना यूआरएल कस्टमाइज करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली हमारा यूआरएल फॉर्म करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास डोमेन आता है, हमारा डोमेन ये है परमालिंक यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये फिक्स रहेगा क्योंकि ये हमारा डोमेन है। यहाँ पर कैटेगरी रहेगी और यहाँ पर आपका जो भी स्लग पार्ट, जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? वेबसाइट पर ओके। वर्डप्रेस पर कैसे चेंज कर सकते हैं और ब्लॉगर में कैसे चेंज कर सकते हैं, या मैम क्लियर। थैंक यू। ठीक है। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी हैव टू वाइंड अप दिस सेशन, ओके। So thank you all of you. Just go through all the schema markup types that we have discussed today. Okay. Thank you. Yeah. थैंक यू। Yeah. थैंक यू मैम।